Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the advantages of biofertilizers? Why we should use biofertilizer? And what is the importance of these biofertilizers? क्यों हमको यूज़ करना चाहिए biofertilizer? Actually biofertilizer क्या होते हैं और इनकी क्या importance है? I'll tell you in this lecture. Actually biofertilizers are the living microorganism which are helpful for increasing the nutrient availability, particularly they increase the nitrogen fixation, they solubilize the phosphorus, they mobilize the potassium, they mobilize the zinc, and also helpful in nutrient availability. So we can say these biofertilizer, bio means microorganism or living organism, bio means living thing, but here biofertilizer means living microorganism. तो ये जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक्चुअली बैक्टीरिया या फंगस को हम जनरली यूज़ करते हैं, सॉइल में अप्लाई करते हैं या सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे इनकी एक्टिविटी से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़े, तो उसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। तो ये कैसे एडवांटेजेस हैं हमारे लिए बायो फर्टिलाइजर्स? सो बायो फर्टिलाइजर्स एज द नेम इंडिकेट दिस बायो, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, many species of bacteria are used, many species of fungus are used for the availability of the nutrient. So जो मेजर इसमें जो बायो फर्टिलाइजर का काम है जो होते हैं that is the nitrogen fixation and in soil we know that the nitrogen is subjected to various loss, leaching हो जाती है, denitrification is there and volatilization is there and there is no mineral source और वेरी लिमिटेड सोर्स। तो जो नाइट्रोजन के जो मिनरल सोर्स हैं बहुत कम है, दैट्स वाई नाइट्रोजन एबिलिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए आप फास्फोरस के सोर्स देखेंगे तो एपेटाइट है, पोटेशियम का माइका है, इस तरह से बहुत के सबके सोर्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कोई सोर्स नहीं है और जो भी नाइट्रोजन मिनरलाइज होती है वो लॉस कर जाती है। बट इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट 80% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड हियर नाइट्रोजन इज वेरी लेस. So some microorganism has capacity to use this air, and in air 80% nitrogen is used and they fix the nitrogen into the soil. तो ये एक नेचर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इन्हीं बैक्टीरिया को हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज एजोटोबैक्टर. दिस कैन बी यूज्ड इन any crop, it is free living. Then azospirillum, and it is very specific for sorghum crop. And then very important is rhizobium. Rhizobium is used in many legume crops, and there are many species of rhizobium, bradyrhizobium, azorhizobium, and they are specific for the legume crop. तो pigeon pea के लिए अलग है, पी के लिए अलग है, और जो सेसबेनिड है चाहे उसके लिए राइजोबियम अलग है, बट दीज कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. सिमिलरली एसिटोवेक्टर कैन बी यूज्ड इन शुगर केन, एसिटोवेक्टर. सो वी यूज दिस microorganism as a biofertilizer, as a fertilizer, then they are termed as biofertilizer. So the contribution of biofertilizer is nitrogen availability to the plant. अब देखिए सॉइल में तो नाइट्रोजन की कमी है, ना तो उसके मिनरल्स हैं, और जो भी नाइट्रोजन हम देते हैं वो लॉस कर जा रही है लीचिंग से या डिनाइट्रिफिकेशन से या वोलेटाइजेशन से, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन, तो ये बैक्टीरिया इसको रेस्पिरेशन की जब इसमें एयर लेते हैं तो उसको जो नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दिस एक्टिविटी इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. So this is the advantage of this biofertilizer is nitrogen fixation. Another advantage is phosphorus. Actually, what is the problem in the phosphorus in soil that it get fixed? Phosphorus is highly reactive. Phosphorus बहुत reactive होता है and it is converted to so many insoluble compound like iron के साथ iron phosphate बन जाता है, फिर और एल्यूमिनियम के साथ फास्फेट बन जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट बन जाते हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट इनसॉल्युबल हो जाता है, एंड दिस सम बैक्टीरिया आर देयर व्हिच सॉल्युबलाइज दिस फास्फोरस. सो दे इंक्रीज द फास्फोरस ability by the solubilizing this phosphorus. तो देखिए नाइट्रोजन का तो फिक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन जो फास्फोरस सॉइल के अंदर है, ट्राइकैल्शियम फास्फेट है या एपेटाइट है या एल्यूमिनियम फास्फेट है, जितने भी तरह के फास्फेट उनको सॉल्युबलाइज करते हैं, एंड दीज आर बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट.
बैक्टीरिया हैं, इसमें फंगस हैं, बैक्टीरिया जैसे बैसिलस एंड सुडोमोनास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस पॉलीमैक्सा, सुडोमोनास स्ट्राइटा। सिमिलरली फंगस, सम फंगस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एस्परजिलस एवामोरी, ये फास्फोरस को स्टेबलाइज करती है। पेनिसिलियम डिजिटेटम, ये भी फास्फोरस को स्टेबलाइज करती है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, पोटेशियम की ये फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर इसको हम पीएसबी भी बोलते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर या फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो पीएसबी को हम यूज करते हैं फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिससे कि जो हमारा सॉइल में जो फास्फोरस है उसको सोलुबलाइज कर दे। तो जितना भी हम फास्फोरस डालते हैं, अधिकांश जो होता है मोस्टली फास्फोरस गेट कन्वर्ट इनटू नॉन सोल्यूबल फॉर्म, पानी में घुलता ही नहीं है फास्फोरस। जब पानी में नहीं घुलेगा तो पौधों को मिलता ही नहीं है। जब हम पीएसबी यूज करते हैं, जो मैंने भी बताया बैसिलस या सुडोमोनास या हम जो फंगस यूज करते हैं, तो वो फास्फोरस को सोलुबलाइज करती है, पानी में घुल जाती है, जिससे कि प्लांट उसका अपटेक कर लेते हैं। तो ये एक हमारा एडवांटेज हुआ बायो फर्टिलाइजर को यूज करने का, कि जो सॉइल में जो नेटिव फास्फोरस है पहले से है उसको सोलुबलाइज करा दिया। तीसरा जो हमारा एडवांटेज ये रहता है कि पोटेशियम के साथ अगर हम प्रॉब्लम देखें तो पोटेशियम इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म, ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। तो ये मिनरल्स के बीच में लैटिस में फिक्स हो जाता है, एजेस पे चला जाता है, ये क्ले मिनरल्स के बीच में फिक्स हो जाता है, जो लेयर्स होती है उसके बीच में फिक्स हो जाता है, और ये फिर फास्फोरस दिस पोटेशियम इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट बिकॉज इट इज कन्वर्टेड टू नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म। अब नॉन एक्सचेंजेबल है तो इसका सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, किसी भी न्यूट्रेंट का सॉइल सॉल्यूशन में आना जरूरी है, या तो सोलुबलाइज होके है या एक्सचेंज मैकेनिज्म होकर सॉइल सॉल्यूशन में। अब क्या होता है, ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आ पाता, तो प्लांट की रूट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसका सॉइल सॉल्यूशन में आना जरूरी है। तो सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको मोबिलाइज करते हैं, एंड दे आर नोन एज KMB, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको मोबिलाइज कर देते हैं, दे मोबिलाइज पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको मोबिलाइज कर देते हैं और ये सॉल्यूशन में आता है और अवेलेबल हो जाता है। जैसे फ्रिटेरिया ओरेंशिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इसको मोबिलाइज करता है, उसको हम एज ए बायोफर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जिंक का भी देखिए, जो अनदर जो ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर हम जिंक को देखें तो जिंक के साथ भी सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो जिंक की सॉल्युबलाइजिंग ZSB, जैसे PSB है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसी तरह से ZSB है जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, बैसिलस स्पीसीज हैं जो जिंक को सोलुबलाइज करती हैं और जिंक अवेलेबल होता है। और ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट हो रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में बहुत जगह ये जिंक डेफिशिएंट हो गया है, तो उसको सोलुबलाइज करा देते हैं ये बैक्टीरिया जो सॉइल में फिक्स हो गया है, जो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ये बायोफर्टिलाइजर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, फास्फोरस के सोलुबलाइजेशन में, पोटेशियम के मोबिलाइजेशन में और जिंक के सोलुबलाइजेशन में। तो ये तो मैंने आपको बताए वो रोल जो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम दूसरे उसको देखें, सिलिकेट्स को भी ये मोबिलाइज करते हैं, जिससे उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो मेजर मैंने आपको न्यूट्रिएंट बताए जिनसे इनकी बायोफर्टिलाइजर इंक्रीज दी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर हम दूसरे रोल्स को देखें तो जो अलग रोल है बायोफर्टिलाइजर के, इसे देखिए, ये कॉस्ट इज वेरी लेस, दिस इज द एडवांटेज, कॉस्ट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली, यूरिया को देखें या DAP को देखें, NPK देखें, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सब्सिडी के बाद भी इतने महंगे मिलते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत कम होती है। देन पॉल्यूशन इज लेस, पॉल्यूशन अगर हम देखें इसमें बायो फर्टिलाइजर में, तो देखिए जो हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं, इतनी बड़ी यूनिट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, CO2 इज इमिटेड, हम CO2 का इमिशन होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। और हम जब केमिकल फर्टिलाइजर को फील्ड में यूज़ करते हैं तो जो उनके लॉसेस होते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स में जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो नहीं है, या बहुत कम है, हम ये कह सकते हैं, है ही नहीं पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, डू नॉट पोल्यूट द सॉइल। दूसरा, जो सॉइल को जो एक्टिविटी है, सॉइल एक्टिविटी या सॉइल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं ये बायो फर्टिलाइजर कैसे करते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एग्रीगेशन, सॉइल एग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिटेंशन एंड एयर सर्कुलेशन, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी। जो एग्रीगेशन है सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो बायो फर्टिलाइजर क्या है, माइक्रोब्स हैं, मतलब बैक्टीरिया है, फंगस है,
ये पॉलीसेक्राइड्स सिक्रीट्स करते हैं, और जो ये पॉलीसेक्राइड से सॉइल का एग्रीगेशन बढ़ता है, तो इस सॉइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव रखते हैं सॉइल को। और जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इन्हीं की जो हमारे हेल्पफुल बायो फर्टिलाइजर है, तो जो डिसीज सप्रेसिंग, जो डिसीज को करते हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनके बैक्टीरिया, जो डिसीज वाले बैक्टीरिया उनको पॉपुलेशन कम कर देंगे, या फंगस को, जो हार्मफुल फंगस उनको कम करेंगे। तो सॉइल बायोलॉजिकली एक्टिव रहती है, डिसीज को भी कम करते हैं। दूसरा जैसे एजोटोबैक्टर, ये IAA ऑक्सिन को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए। ऑक्सिन है या हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है एजोटोबैक्टर से, और एजोटोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करता है, हैवी मेटल का बायोरेमेडिएशन करता है। हैवी मेटल जो हैं उनको चाहे कैडमियम है, चाहे मरकरी है, चाहे लेड है, इनका बायोरेमेडिएशन करता है। अगर सॉइल में इफ प्रेजेंट दिस हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट, देन इट इज हेल्पफुल इन बायोरेमेडिएशन। और क्लोरिनेटेड जितने कंपाउंड उनके डिग्रेडेशन करते हैं। क्लोरिनेटेड कंपाउंड, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, दिस आर प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और ये पोल्यूट करते हैं सॉइल को। तो अगर एजोटोबैक्टर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये इसका डिग्रेडेशन कर देते हैं, तो जिससे टॉक्सिसिटी नहीं रहती है। तो ये एक देखिए बहुत अच्छे एडवांटेज हैं बायो फर्टिलाइजर के। अगर हम वी आर यूजिंग द बायो फर्टिलाइजर, पूरे हम राउंड बायो फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, एजोटोबैक्टर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, या राइजोबियम की पॉपुलेशन बढ़ेगी, या बैसिलस की जो हमारी हेल्पफुल स्पीसीज हैं, जैसे बैसिलस पॉलीमैक्सा है, या मेगाटीरियम है, या सुडोमोनास स्ट्राइटा है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी, और उसका धीरे धीरे उसका जो है असर नजर आता है। एकदम से 1 साल या 2 साल में उसका असर नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे दिस बिकॉज ऑफ दिस इंप्रूवमेंट इन सॉइल प्रॉपर्टीज, डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ये एक बहुत अच्छा इसका बायो फर्टिलाइजर के यूज होते हैं। सेकेंडली, ये दिस बायो फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड अंडर रेनफेड कंडीशन। एक्चुअली रेनफेड कंडीशन मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इज द प्रॉब्लम, एंड व्हेन वी यूज द केमिकल फर्टिलाइजर मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। उसके मॉइस्चर, हम जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया करें, NPK करें, DAP करें, उसको सॉल्युबल होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन रेनफेड सिचुएशन में क्या होता है, मॉइस्चर जब नहीं होता तो हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो रेनफेड सिचुएशन में वी कैन यूज दिस बायो फर्टिलाइजर, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो हमको सॉइल में डालना है, सॉइल में ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और ये चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, फास्फोरस सल्वलाइज करेंगे, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे, डिसीज सप्रेशन को कम करेंगे, हार्मोन्स को बढ़ाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे ये। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर को हम रेनफेड सिचुएशन में यूज नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द वेरी गुड एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो हम डेफिनेटली हमें उसका एडवांटेज होता है। जैसे फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर कैन बी यूज्ड इन एनी क्रॉप, एजोस्पर्म भी को भी हम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन ये सॉर्गम के लिए है। तो PSB है, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग है, जिंक सोलुलाइजिंग, इसको हम किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। ये क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है, क्रॉप स्पेसिफिक जो है वो राइजोबियम है। बाकी को हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। दूसरे चीप होते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है, तुमको बेनिफिट ज़्यादा होता है, इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इनका लॉस नहीं होता है, जैसे कि यूरिया का लॉस हो जाता है लीचिंग में, या डिनाइट्रिफिकेशन में, या वोलेटाइलेशन में, दूसरे लॉसेज इनके लॉस नहीं होते हैं। इनका जो है हमारा बेनिफिट्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। बस इसके साथ कॉन्स्टेंट्स क्या है, इनकी जो कॉन्स्टेंट अगर हम देखें, मतलब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है बायो फर्टिलाइजर के साथ, कि जो इनकी शेल्फ लाइफ है, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है वो विद द टाइम रिड्यूसेस। तो शेल्फ लाइफ इज अबाउट 6 मंथ। अगर हम इसको 6 मंथ के बाद तक हम रखते हैं तो ये इनकी इफिशियंसी कम हो जाती है। लेकिन जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है उसकी 1 to 2 ईयर है। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की 1 to 2 ईयर्स लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स। ये है सॉलिड कैरियर बेस्ड सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है, सॉलिड बायो फर्टिलाइजर्स। बट इन जनरल दिस सॉलिड बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल एंड देयर आर टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, हमने कहीं रखा है, तो ये डैमेज हो जाती हैं इनकी, क्योंकि वाइवल सेल्स होती हैं जो भी हमने चाहे सॉलिड बायो फर्टिलाइजर लिया है चाहे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर लिया है, उसकी सेल्स क्या है, वाइवल होती हैं, जिंदा सेल होती हैं। जैसे हम सॉइल में डालते हैं, सीड में डालते हैं, मल्टीप्लाई करने लगती है। तो इसका एक कांस्टेंट है, इसको हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं सकते। तो ये एक कांस्टेंट है। दूसरा कांस्टेंट इसका है क्रॉप स्पेसिफिक है। ये क्रॉप स्पेसिफिक पर्टिकुलरली जो है स्पेसिफिक जैसे राइजोबियम, एंड राइजोबियम भी स्पेसिफिक है अलग अलग पल्स क्रॉप। राइजोबियम कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द क्रॉप, इट इज यूज्ड ओनली इन लेग्यूम क्रॉप एंड पल्स क्रॉप। एंड लेग्यूम्स में भी जो जैसे कि ब्रेडी राइजोबियम है, इट इज यूज्ड इन पिजन पी और ब्लैक ग्राम, एंड सिंपल राइजोबियम इज यूज्ड इन पी
एंड लेंटिल। तो इसमें भी ये क्रॉप स्पेसिफिक है, केवल लेग्यूम को यूज करते हैं। लेग्यूम में भी अलग अलग तरह की जो लेग्यूम है उसमें भी सब अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, क्रॉप स्पेसिफिक ये इसका कांस्टेंट है। लेकिन जो बाकी है वो उसको हम एजिटेबैक्टर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम मोबिलाइजिंग को कहीं भी यूज कर सकते हैं, या हमारा पीएसबी है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इनकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, न्यूट्रिएंट सप्लाई ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लो, they do not supply very much quantity of nitrogen like 40 kg 60 kg, it is not like that। ऐसा नहीं होता कि ये 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर दे देंगे या 80 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर दे देंगे। इनकी जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी है वो लो है, अबाउट 20 to 30 kg ये पूरे ईयर में करते हैं। तो लेकिन 30 kg नाइट्रोजन भी अगर हमको मिले तो काफ़ी बचत हो जाती है। तो दीज आर द सप्लीमेंट, दीज आर द supplement and these are not the replacement, these are supplement to the chemical fertilizer। तो ऐसा नहीं हम केमिकल फर्टिलाइजर को पूरा हटाएं और उनको पूरा यूज कर दें, तो वो पूरा एनपीके और इतना नहीं दे पाएंगे। सो दे उसके साथ में कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है। तो एक्चुअली में ये सप्लीमेंट है और ये टोटल रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, ये इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन बट ओवर द ईयर्स अगर हम इसका टोटल एडवांटेज देखें तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है एंड दे आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर डोज। अब केमिकल फर्टिलाइजर की डोज को हम कम कर सकते हैं, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो है कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, हमारा बेनिफिट बढ़ता जाएगा, और ओवरऑल जितने मैंने बेनिफिट्स बताए वो सारे बेनिफिट्स हमको होंगे। दैट्स व्हाई वी शुड यूज दिस बायो फर्टिलाइजर कंटिन्यूसली इन द फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप। कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं उसमें एजिटेबैक्टर डालें, पीएसबी डालें, केएमबी डालें, पोटेशियम मोबिलाइजिंग डालें, जिंक सल्फलाइजिंग डालें, तो उससे आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। और लेग्यूम ग्रो कर रहे हैं तो राइजोबियम जरूर करें। अगर राइजोबियम से इनोकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे सोयाबीन है या उड़द है या मूंग है, अगर राइजोबियम से इनोकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो उसकी यील्ड कम रहती है। तो यही कारण होता है कि बहुत से फार्मर्स राइजोबियम से इनोकुलेशन नहीं करते हैं, तो इससे उनकी यील्ड कम रहती है। तो जब भी इन क्रॉप को ग्रो करें लेग्यूम्स को, राइजोबियम से इनोकुलेशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर राइजोबियम से इनोकुलेशन नहीं करेंगे तो उसकी यील्ड बहुत कम रहेगी। तो जब भी आप पल्स क्रॉप को ग्रो करें तो राइजोबियम से जरूर उसको इनोकुलेट करें। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर। थैंक यू वेरी मच।